Good morning, dear students. In the previous lectures, we have already discussed about the consumer behavior, consumer buying behavior pattern. We also discussed about the market segmentation, how market is divided. Today, we are going to discuss about market research and more importantly, marketing information system. Marketing information system. Marketing information system. MIS. MIS. We are going to study about how MIS works, why we require MIS, and what are the components of MIS. What are the components of MIS? We are going to discuss about that. We are going to discuss about how marketing research and marketing information system are connected with each other. So, first of all, let me tell you, if we want to conduct the research, अगर हमें कोई भी रिसर्च करना होता है, तो रिसर्च करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए. Without research, we will not be able to conduct. Without data, we will not be able to conduct the research. And research starts with the problems. Research starts with the problems. Whenever there is a problem, there is a scope of research. Whenever there is a problem, there is a scope of research. When we speak about data, data needs to be collected from the proper sources. Data needs to be collected from the proper place. Data needs to be shared with the proper direction. अगर हमने डेटा कलेक्ट करने में गलती कर दी, अगर हमने डेटा गलत जगह से कलेक्ट किया है, then there is no use. कोई फायदा नहीं है. It will be a loss. और मेहनत पूरी अपनी जीरो हो जाएगी. The most important part is we have to collect the data from the original source, and proper direction. Okay, so marketing information system, it is a system which helps us in collecting the data in a proper way, which helps us in assembling the things in a proper way. जब तक हम proper data collect नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी decision भी ले पाएंगे नहीं. So we are going to study what is marketing research and what is marketing information system with reference to this. Dear students, let me tell you one thing. 3-4 साल पहले यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आता है, स्टूडेंट्स जनरली एक क्वेश्चन को अवॉइड करते थे कि भाई क्या करने का, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आ सकता है नहीं आ सकता है, कोई जरूरत नहीं है करने की, क्यों हम लोग इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे क्वेश्चन को. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3-4 साल पहले अचानक से यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन आया. क्वेश्चन था व्हाट इज MIS and what are the components of MIS. What is MIS and what are the components of MIS. MIS के components क्या है. अब दोस्तों, स्टूडेंट्स ये 15 मार्क का फुल फ्लेज क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए और उनके स्कोर्स पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा. तो ये क्वेश्चन जो है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आइदर शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर, इसमें कंपल्सरी फॉर्म में आता है. सो वी शुड नॉट इग्नोर दिस क्वेश्चन. सो होप यू आर रेडी. May I start with this? May I start with this now? All of you are ready? जब मैं ये इसका पॉइंट्स बराबर से पढ़ूंगा, आप लोगों को मेरे साथ वो प्रॉपरली प्रेजेंटेशन देख के उसके साथ में आपको समझने की कोशिश करनी है. बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या है, डिफिकल्ट है, प्रॉब्लमेटिक है, या दिस एंड दैट.
but you have to try to understand with me. I will explain you each and every word properly. I will explain you each and every word properly, so don't worry about that, and try to understand the concept in a proper way. Okay, so I'm starting with the concept. First, to begin with, अगर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छे से समझना है, so it is necessary to understand marketing research. Marketing research is the systematic and objective research. Marketing research is the systematic and ऑब्जेक्टिव रिसर्च. ये मैंने लास्ट वीक में भी लेक्चर में बताया था. एक सिस्टमेटिक तरीके से किया गया, ऑब्जेक्टिव को फोकस करके किया गया रिसर्च है फॉर द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ. ध्यान से समझना, वो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है जो दो बातें हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया जाए, देन उसको सॉल्व किया जाए. आप जब तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते हो, तब तक उसका सॉल्यूशन भी नहीं ला सकते हो. Until and unless you will not be identifying the problem, you will not be able to find the solution for the same. So the first thing is that you need to identify the problem, then you need to solve the problem. एक सिंपल सी बात बताओ, whenever you are doing accountancy, आप जब भी accountancy पढ़ते हो, तो accountancy के अंदर पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझते हो, आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद उसको सोल्व करते हो. तुरंत ही प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं कर देते सॉल्यूशन. यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. देन ओनली यू हैव टू गो टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सो कल करके आप एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर बन गए, अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, यू हैव अचीव्ड अ गुड पोजीशन इन अ कंपनी. ओके, तो आपके सामने क्या चैलेंज है, अभी आप देख सकते हैं. Marketing manager face numerous problems from time to time during the conduct of marketing activities. They need information upon which they may take proper decisions. They may need information upon which they may take proper decisions. The manager is by profession is decision maker. ध्यान से समझना, मैनेजर बाय प्रोफेशन इज अ डिसीजन मेकर. मैनेजर एक डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि उसके लाइफ के हर मोड़ पे, हर जगह पे डिसीजन लेना पड़ता है. ही हैज टू टेक अ डिसीजन इन एवरी फील्ड, इन एवरी एरिया, इन एवरी क्रंच. सो एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो सही समय पे सही डिसीजन ले और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाए, अपने कंपनी का काम बराबर लोगों से करा के ले. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द मार्केटिंग रिसर्च. लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS. MIS is a wider concept जिसमें मार्केटिंग रिसर्च भी आता है. MIS is a wider concept. मार्केटिंग रिसर्च is a part of MIS. ध्यान से समझना, मार्केटिंग रिसर्च is one part of MIS. MIS का वो एक हिस्सा है. It is just one part of MIS. So MIS क्या है, अब उसके बारे में देखेंगे. Then what is MIS? We will study that. Dear students, MIS, Marketing Information System. अब दोस्तों कुछ लोग इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं. क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मार्केटिंग, सो हम क्या कहेंगे?
मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ध्यान से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू मेक sound and rational decision. Responsibility of a manager to make sound and rational decision, and the quality of decision is determined by the skill of decision maker. हर एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है साउंड डिसीजन लेना, यानी कि सिचुएशन को प्रॉपरली सूट करे वैसा, एंड रेशनल डिसीजन लेना। रेशनल का मतलब होता है ट्राई टू गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विद द मिनिमम एक्सपेंडिचर। ट्राई टू गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। He should cut down the unwanted expenses. He should cut down the not wanted, irrelevant, unwanted expenses. He should capitalize on whatever is available in the company. कंपनी के पास जो भी है उसको वो फोकस करता है, उसको वो ध्यान देता है, और वैसे ही कंपनी को आगे बढ़ता है विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास 3 रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज। ये तीनों रिसोर्सेज का हमें कैसा यूज होना चाहिए, हमारे पास उसका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। कैसा यूज होना चाहिए, ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। So that is what we need to understand. Responsibility of a manager to make the sound and rational decision, and the quality of decision is determined by the skill of decision maker plus the quality of in the information. ध्यान से पढ़ना, डिसीजन अच्छा होगा या डिसीजन गलत होगा, डिसीजन सही होगा या डिसीजन रॉन्ग होगा, कैसे डिसाइड होगा, इज डिटरमाइंड बाय द स्किल्स ऑफ डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर का स्किल कितना है, क्वालिटी कितना है, परफेक्शन कितना है, प्लस द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो कौन सी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस इज टेकिंग सच डिसीजन। ये 2 चीजें डिसाइड करेगी कि वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा। आप भी लाइफ में डिसीजन लेते हो और हमेशा हम लेते हैं और हमें लेना भी पड़ता है लाइफ के हर मोड़ पे, हर जगह पे। टीवाई कंप्लीट हुआ, अब क्या कर रहे हैं, विच कोर्स, विच डिग्री, व्हाट। अब आपका डिसीजन परफेक्ट कब होगा, आपका डिसीजन परफेक्ट तब होगा जब आपका इंफॉर्मेशन परफेक्ट होगा। अगर आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वही रॉन्ग है, आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वही रॉन्ग है, तो आपका डिसीजन भी कैसा होगा, रॉन्ग होगा। तो आपका क्वालिटी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया है वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी इंफॉर्मेशन, बाय better information, perfect information, needed information, required information. You should not compromise on the quality of the information. So ये आपको यहाँ पे ध्यान में लेना पड़ता है। At the same time, when we speak about a person's decision, मैं फिर से बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिग्री कॉलेज का इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, तो आपका स्किल कितना परफेक्ट है, हाउ मच यू आर स्किल्ड in decision making, that decide the proper quality of information to satisfy the modern concept of marketing। अगर हमें आज का जमाने का मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट को पूरा करना है, आज के जमाने के हिसाब से मार्केटिंग को पूरा करना है, तो the availability of adequate information on consumer requirement, अगर आपको आज के जमाने का मार्केटिंग का गोल जो होता है उसको कंप्लीट करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। जितनी चाहिए रिक्वायर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑन कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर और प्रेफरेंस के वो मस्ट बी रिगार्डेड एज अ की फैक्टर्स इन मार्केटिंग प्लानिंग। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर। अ फर्म मस्ट continuously receive and monitor environmental information if it has to face the dynamic environment।
A firm must continuously receive and monitor environmental information. अब आप लोग बोलेंगे सर एनवायरमेंट यहाँ पे क्या करेगा? दोस्तों यहाँ पे हम बात EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज रिलेटेड टू द ज्योग्राफी एंड नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात करता हूँ बिजनेस एनवायरमेंट की। When we speak about the business environment, तो business environment कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, how business environment works, how business environment allows us to change the business, how business environment makes the things different, how business environment is giving us a quality output. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको आपके सराउंडिंग में फिर वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, कल्चरल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। आप लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो आपको एक कंपल्सरी टॉपिक था बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको ये सारे एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना, आपको ये सारे एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। You have to understand what exactly the business environment is about. So दोस्तों, simple. You have to plan your environment properly. A firm must continuously receive and monitor. रिसीव यानी कि उसको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, मॉनिटर यानी कि कंट्रोल करना चाहिए। क्या कंट्रोल करना चाहिए? एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। देखो, मॉडर्न वर्ल्ड इज अ डायनेमिक वर्ल्ड। आज के डायनेमिक वर्ल्ड के अंदर आप लोग एकदम स्टैटिक बन के बैठोगे तो चलेगा नहीं चलेगा, आप लोग को भी डायनेमिक बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन द फैशन, चेंज इन द ट्रेंड। अब किसको पता था कि ये परिस्थिति में लॉकडाउन का इतना बड़ा कहर मचेगा? आज पिछले 22 मार्च से अल्टीमेटली दिस इज अ सितंबर 3, मार्च से लेके सितंबर तक की जो हमारी सफर की अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 5.5 महीने एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं। हमने जिंदगी में कभी सोचा था कि 5.5 महीने हमें कोई भी काम नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये परिस्थिति आ गई। अब ये परिस्थिति के अंदर हमें सबके सामने चैलेंज है कि मैं वापस कम बैक टू द नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल बोलते हैं ना जिसको, बैक टू नॉर्मल कैसे आऊँ, कैसे मैं मेरे जीवनचर्या को वापस से वही लेवल पे लेके आ जाऊँ, कैसे मैं मेरे जीवन को उस लेवल पे वापस मेंटेन करूँ, हाउ आई विल मैनेज माय लाइफ, हाउ आई विल सर्वाइव, हाउ आई विल कम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आई नीड टू डू। सो ये सारी चीजें, ये सारी बातें हमको यहाँ पे समझनी चाहिए। We have to understand these all things because it is necessary. It is necessary कि हम अगर हमारे बिजनेस को नहीं समझेंगे, हम हमारे बिजनेस के सराउंडिंग को नहीं समझेंगे, तब तक हम वो बिजनेस को अच्छा कर पाएंगे नहीं, आगे बढ़ा पाएंगे नहीं। We need to understand the business in a proper way. और उसके लिए कोई भी बिजनेस को समझने के लिए we need to understand the business environment. आपको याद होगा जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते तब हम क्या करते? स्वॉट एनालिसिस, SWOT। स्वॉट, स्वॉट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हम स्वॉट को स्वॉट बोलेंगे, SWO बराबर है, चौथा होता है T, थ्रेट्स, उसकी जगह पे हम लगा देंगे C, चैलेंजेस। क्यों हम लोग ऐसा बोले कि हमें थ्रेट किससे है? हम ऐसा बोलेंगे कि हमको चैलेंजेस किससे, कितने कॉम्पिटिटर है, कौन है हमारा कॉम्पिटिटर, हम ऐसा बात करेंगे। सो स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। ये चारों मिलके क्या बन जाता है? स्वॉट एनालिसिस बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये सारा चीज तुम सही कब कर पाओगे, परफेक्ट कब कर पाओगे? तुम तब कर पाओगे जब आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बराबर से समझोगे। सो आपको यहाँ पे उसका मीनिंग आई होप बराबर समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट से यस और नो इन द चैट बॉक्स सो आई कैन गो अहेड। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग आपको समझ में आया तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। से यस और नो इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। मूविंग फर्दर with the more detailed discussion on the particular topic. Yeah. अब हम बात करेंगे
some more definitions डिटेल में उसके जाएंगे जिससे हमें समझेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द MIS इज। दोस्तों MIS ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। MIS is a continuous activity. It is an organized, ongoing system. वो properly organize किया गया ongoing system है for providing information to decision maker in the marketing field. For providing information to the decision maker in the marketing field. मैं फिर से बताता हूँ, एक organize किया गया ऑनगोइंग सिस्टम है जिससे क्या फायदा होता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द डिसीजन मेकर इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें प्रॉपर कंडीशन में लाके बताने का काम करता है, वो होता है MIS। अब यहाँ पे उसके डेफिनेशन लिखिए। के कॉक्स एंड आर्को marketing information system may be defined as a set of procedures and methods. मैं फिर से बताऊं, MIS क्या है? A set of procedure and methods for the regular and planned analysis. ध्यान से समझना, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मेथड है जो रेगुलर एंड प्लान एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल टू टेक मार्केटिंग डिसीजन। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल टू टेक मार्केटिंग डिसीजन। मार्केटिंग डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से प्रॉपरली मिलता है। कोई भी डिसीजन लेना हो, मैंने पहले भी कहा था, दो बातें जरूरी होती है। नंबर वन, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे आप डिसीजन ले लो। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने गूगल में कोई सर्च मारा, TY/BCom यूनिवर्सिटी एग्जाम, बराबर, और आपने लिखा फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम। अब गूगल क्या सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी का बताएगा? नहीं, Google will show you overall everywhere worldwide, जिधर जिधर से कुछ उसको इंफॉर्मेशन मिलता है वो लेके आके क्या करेगा, आपको शो करेगा। मगर आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको इंफॉर्मेशन चाहिए मुंबई, तो आपको गूगल को प्रॉपरली टाइप करके रिप्लाई देना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट एंड हाउ वी विल फंक्शन। सो it is a set of information, it is a procedure, it is a method for regular and planned analysis and presentation of information। और वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रेजेंट करना, वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रेजेंट बताना, which is useful to take the marketing decision, जो हमें मार्केटिंग डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, जो हमें मार्केटिंग डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। वो इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपरली गाइड करता है कि कैसे हमें मार्केटिंग डिसीजन लेना चाहिए, how we have to conduct the marketing and marketing decision we have to take properly. So that is the proper procedure of conducting the marketing information system. It is a system. It is a system and a definite purpose and arrangement of various interdependent components. It is a system where a definite purpose and arrangement of various interdependent component, अलग अलग interdependent component के बारे में वो बात करते हैं and discuss करते हैं। It is a proper kind of a system जो अलग अलग interdependent component, मैं बार बार पढ़ता हूँ ये interdependent component, यानी कि for example marketing, sales again depend on each other, so it became an interdependent, क्या बन गया है? Interdependent component. A definite purpose and arrangement of various interdependent component information. Guideline which is the potential to influence the decision making information. What is it? Guideline which is the potential to influence the decision making. It provides a kind of a guideline. MIS हमें क्या provide करता है? Guideline which is the potential to influence the decision making, जो हमारे decision making को influence करता है। So
management information marketing information system is ongoing system. एक ऐसा सिस्टम जो कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूस चलता है, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेके आता है और डिसीजन मेकर को देता है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग. बराबर है. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट ओवरऑल मैनेजमेंट, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो एमआईएस का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग, इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, सो इट इज अ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो मार्केटिंग एमआईएस में अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट्स अ सेट ऑफ प्रोसीजर methods for the regular and planned analysis and presentation of information. वैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वैसा डिटेल्स लेके आना, which is useful to take the marketing डिसीजन, जो हमें मार्केटिंग के ऊपर डिसीजन लेने को हेल्प करता है, वो इंफॉर्मेशन हमें लेके आना है. It is a system having a definite purpose and arrangement of various interdependent components. And last thing is information. MIS क्या लगे देता है हमें, इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन. गाइडलाइन बोलते तो इंस्ट्रक्शन, अपने को आइडिया देता है. विच हैज, इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन विच हैज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग. जो क्या हमें हेल्प करता है, तो पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, जो हमारे डिसीजन मेकिंग को प्रॉपर्ली गाइड करता है, जिसके ऊपर हमारा डिसीजन. तो हमारे पास सिस्टम अच्छा रहेगा तो हमें सोचना नहीं पड़ता है. प्रॉब्लम को पता है, जब हमारे पास सिस्टम बराबर नहीं रहता है, हमें डिटेल में जाके सोचना पड़ता है. बराबर है. सो दैट इज व्हाट द एमआईएस इज ऑल अबाउट. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड प्रॉपर्ली. ओके, one more thing, last point in the MIS, then we'll go with another explanation in the MIS, which is very important. Marketing information system is a systematic collection of information. ये एक ऐसा systematic collection of information है which is useful to take the marketing decision. मार्केटिंग का कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है तो उसके लिए हमें पास एमआईएस के तरफ से आया हुआ डेटा होना बहुत ही जरूरी है. इट कंटिन्यूअसली गेदर्स द डेटा. गेदर्स बोलते तो कलेक्ट करता है डेटा. एक कंटिन्यूअसली डेटा हमारे पास लेके आने का काम करता है. फैक्ट्स एंड फिगर, फैक्ट सच्चाई, फिगर्स स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम two sources, internal sources and external sources. Internal sources and external sources. Now try to understand what are the internal sources and external sources. हमारे कंपनी के अंदर के जो रिसोर्स है, वहां से जो हम डेटा लेके आते हैं, इज एन इंटरनल सोर्सेस. अब मेरे कंपनी का सेल्स का डेटा, मार्केटिंग का डेटा, फाइनेंस का डेटा, अकाउंट्स का डेटा, बराबर है. ये सब हमको कोई बाहर ढूंढने जाना पड़ता है नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी तो हमारा मार्केटिंग डिपेंड रहता है ना. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का सेल कितना हुआ है वो चेक करना है, तो वी हैव टू चेक विद द सेल्स डिपार्टमेंट. ओके, अच्छा, वो सेल्स ये एरिया के अंदर मुंबई में हमारे 4,000 यूनिट बिके, पुणे में हमारे 2,000 यूनिट बिके, तो हम लोग बोलेंगे यार मुंबई इज बेटर देन पुणे. बट अभी आप ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है. मुंबई में हमने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर किया है 1 लाख रुपया, तो 4,000 यूनिट बेचे. पुणे में हमने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर किया है सिर्फ 10,000 रुपया, फिर 2,000 यूनिट बेचे. उसका मतलब ये है कि पुणे का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है मुंबई से. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसा स्टेटिस्टिक्स के आधार से डिसीजन दिया जाए. तो नेक्स्ट टाइम आपको ये समझना चाहिए कि पुणे के अंदर 10,000 का खर्चा करके भी 10,000 का खर्चा करके भी अगर 2,000 यूनिट में बेच सकता हूँ, मुंबई में 1 लाख का खर्चा करके 4,000 यूनिट, तो मुझे पुणे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. देखो मैंने डिसीजन लिया. कैसे लिया डिसीजन मैंने, जब मेरे पास स्टेटिस्टिक आया, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन आया, इंटरनल सोर्स से आया डेटा, तो मैंने एक्सटर्नल सोर्स को भी चेक किया कि सच में पुणे में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, ये पीपल रियली वांट टू बाय माय प्रोडक्ट और डोंट वांट टू बाय माय प्रोडक्ट, ये भी मैंने चेक किया. सो दैट इज व्हाट इट इज. अ marketing information system is a systematic collection of information which is useful to take the marketing decision, जो हमें marketing decision के लिए जरूरी होता है. It continuously, मैंने पहले भी कहा, MIS is a continuous process. It continuously
gathers the data, collects the data, facts and figure from internal and external sources. Internal और external sources data collect करके लाता है. Now comes the important question. पहले मेरे को बताओ MIS के बारे में आप लोग को बेसिक उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? If you understood properly till here, say yes or no in the chat box so I can go ahead with the another part. I hope okay, very good. MIS का बेसिक मतलब समझ में आ गया. Very important question. There are so many times they ask in the examination about MIS. Student avoid करता है MIS को अटेंड करने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम लोग जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं उसमें तुमको लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है. बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है. अगर थोड़ा सा हम लोगों ने उसको ध्यान दे के किया, अगर हमने थोड़ा सा उसको समझ के किया, तो आई थिंक so we'll be able to understand the concept properly. Okay. स्वप्नाली, नो नीड टू रेज द हैंड, से ओनली यस और नो इन द चैट बॉक्स. तुम यहाँ पे रेज हैंड करते हो, यहाँ पे मेरे को स्क्रीन के ऊपर डिस्टर्बेंस होता है. ओके, सो डोंट डू इट. से ओनली यस एंड नो. ओके, बी केयरफुल नेक्स्ट. तो यहाँ पे भी तुम्हारा सिंबल जा ही नहीं रहा. स्वप्नाली मोरे रेज हैंड, ठीक है ना? बट से यस और नो, नो नीड टू रेज द हैंड. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स कंपोनेंट ऑफ MIS. ध्यान से समझने की कोशिश करना. इस कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स अगर समझा तो ही तो समझ पाएगा व्हाट एक्चुअली द MIS इज. सर ये तो आपने बता दिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, इधर से करने का, उधर से करने का, इतना करने का, उतना करने का, ये करने का, वो करने का, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलेगा कहाँ से? इंफॉर्मेशन लाएगा कौन? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करेंगे? कौन करेगा? बहुत सारे सवाल होते हैं कि उसका MIS का कंपोनेंट्स क्या है. कंपोनेंट्स मतलब उसके अंदर क्या क्या कवर होता है. What exactly MIS covers? What are the components of MIS? MIS के components क्या है? What are the components of MIS? There are four things. There are four things. Number one, IR. Number two, MI. Number three, MR. Number four, MDSS. There are four things: internal record, IR, marketing intelligence, MI, marketing research, MR, and marketing decision support system, MDSS. दोस्तों एक बात आपने नोट की, मार्केटिंग रिसर्च जो है वो MIS का एक पार्ट है. मार्केटिंग रिसर्च इज जस्ट वन पार्ट ऑफ MIS. इट इज नॉट एवरीथिंग. MIS का वो एक हिस्सा है, MIS का वो एक पार्ट है. सो दोस्तों, फोर थिंग अगेन आई एम रीडिंग: इंटरनल रिकॉर्ड and marketing intelligence, marketing research and marketing decision support system. ये चार पॉइंट हमें यहाँ पे डिटेल में कंपोनेंट्स ऑफ MIS में देखना है. मैंने पहले भी कहा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MIS, और they can also say define MIS and explain the various components of MIS. Define MIS and what are the components of MIS. ये तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है. So you have to write this fourth. इसके डिटेल में मैं अगले लेक्चर में जाने वाला हूँ. इंटरनल रिकॉर्ड, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च and marketing decision support system. These are the four components of marketing information system. The way we collect the data, the way we collect the information which is needed to us, कैसे हम लेके आएंगे, आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए. एक अच्छे मार्केटिंग मैनेजर बनना है तो आपको क्या स्किल्स होनी चाहिए वो ही आपको सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ इंटेलिजेंट काम करना है. सो मिलते हैं विद इन 3-4 मिनट्स अगले सेशन में. विदाउट फेल
come immediately. I also have one more video to show you immediately after this on MIS. So thank you very much. I'm stopping here the session and join immediately. Thank you.